Welcome to ConMind. So today we are going to attempt the Combined Defense Services Elementary Mathematics 2025 first paper. Okay. Till now we have been doing through all the PYQs from 2014 to 2024. Like more than 20 PYQs we have done and almost crossed about 1000 plus questions have been done till date. And many topics have been covered simultaneously. Now let us continue with this series and attempt the 2025 paper. The instructions remain as usual. Maximum marks are 100. Time is 2 hours. Subject is elementary mathematics. Since questions are 100, so per mark, one question is 1 mark. Okay. Instructions remain as usual. The thing is, for the negative, you will be deducted 1/3. Okay, 1/3 marks will be deducted, like 1/3 of the marks allotted to that question, that is 0.66 marks, 0.33 marks will be deducted for each question. Okay, for each wrong question or unattempted one, or if there is any discrepancy in the OMR answer sheet, then also you will be deducted. Now let us start with the question. The first question says that a real number m is squared to give the value n. Now a real number is squared, like real number is m, it is squared to give a number n. Then what is the minimum value of m plus n? That is minimum value of m plus m square. Now we have a function of m. Now the question is asking us to find out the minimum value of this particular function. What do? We just differentiate it with respect to m. If we differentiate it with respect to m and make it as 0, then from here we will get m is equals to minus 1/2. Okay, and if we find out the second derivative, it is giving us to 1. That means second derivative is positive. That means the first derivative, which we got a critical value, is a local minima. And if we put this value in this particular function, what we will be we will be getting minus 0.5 plus minus 0.5 whole square, and that is minus 0.5 plus 0.25. Now this amounts to what? Minus 0.25, which is option number A. Okay, next question. It says that what is the sum of all 3-digit numbers that give a remainder of 5 when they are divided by 50? Now we know that the 3-digit numbers include 105. If you divide this by 50, you will get a remainder of 5. Plus 50, you will get 155. Plus 50, you will get 205. And eventually, you will land up till you will get number 955. Now, how many terms are there? If this is an arithmetic progression, we write the general term as a plus n minus 1 into d. A is the first term, that is 105. Number of terms we have to find out. D is the common difference. D is the common difference, which is 50, and the last term is 955, so that is equals to 955. So n minus 1 upon 50 is nothing but 955 minus 105. That makes it as 850, and n minus 5 is divided by 50, this and this, 117. Okay, so n is equals to 18. n की वैल्यू जो है 18 आ गई, यानी कि मेरे पास टोटल कितने टर्म्स हैं? 18 टर्म्स हैं. अब हमसे पूछा है कि इसका सम बताओ. सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. सो n/2 इज 9 इंटू फर्स्ट टर्म इज 105 and the last term is 955. So if you add this, you will get this, and if you multiply it by 9, you will get this. Okay, 9540 will be the correct answer. Now next question says that if the average of these numbers lies between 62 and 76, then what is the number of possible integral values of x? So excluding 62 and 76. Okay, if we add up these numbers, what we will get? 64 plus 69 plus 72 and 75. We will get 13 plus 2 15 plus 20 02. 6 plus 6 12 plus 14. 14 plus 14 is 28. So we are getting basically 280 plus x upon 5. This is the average. The question says that this average lies between 62 and 76, both excluding. That means there is no need, or we don't have to put the equality sign here. Okay, so 280 plus x is less than 310, it is greater than 310 and less than 603 380. If we calculate this, make it 280, it is 30, and here if you get this, here it is 100. So that means x lies between 30 and 100, both excluding. So how many integral values of x can be defined? From 31 to 99. From 31 to 99, there are a total of 69 numbers.
which are possible. There are a total of 69 integral values of x which are possible. Okay, so the answer is option number B, which is a 69. Next question says that let x, y, z be such variables such that x plus y plus z is equals to k, where k is a constant. If x plus z minus y into x minus z plus y is proportional to yz, then what is this value proportional to? So this is the question of proportionality, which often comes in the examination. Let us look it in the rough. So basically the question is saying that we have three variables which are largely as x, y, and z. And the thing is, it says that x plus y plus z is equals to k, okay, where k is a constant. Now the question says one thing as well, that x plus z minus y multiplied by x minus z plus y is proportional to yz. That means if we remove the proportionality sign, we will get a constant. Let us suppose that constant is c1 and x into y. Sorry, y into z. Okay, y into z. Let me remove this. Yeah, so the variable was y into z. X plus z minus y into x minus z plus y is equals to c1 into y into z. Okay, now let us start solving. What is x plus z? Now the question is asking us, what is y plus z minus x proportional to? So this question mark we have to find out. Okay, so let us find out. X plus z is what? X plus z is nothing but k minus y. And if you substitute here k minus y, you will eventually end up with k minus 2y multiplied by x plus y. What is x plus y? Is k minus z. So you will eventually end up with k minus 2z, and that is equals to cy into yz. So this is nothing but k minus 2y, and this is k minus 2z. Okay, just go on solving. Just go on solving. So it will be k square minus k minus 2k basically. Okay, minus 2k. If you take minus 2k as common, you will be left with z plus y and plus 4yz. That is equals to c1 yz. Now k square minus 2k into y plus z is equals to yz common here, c1 minus 4. Just take this term here. Okay. Now we know that x plus y plus z is equals to k, so y plus z is equals to k minus x, okay, k minus x. So yz into c1 minus 4. Open this, you will get k square minus 2k square plus 2kx is equals to yz into c1 minus 4. Now minus k common. If you take minus k is common, you will be getting, sorry, this is minus k square plus 2kx is equals to yz into c1 minus 4. Take minus k as common, you will be left with k minus 2x is equals to yz into c1 minus 4. Now what is k minus 2x? Substitute k's value, x plus y plus z. So x plus y plus z minus 2x is equals to yz into c1 minus 4. Now what is this? Y plus z minus x is equals to yz into c1 minus 4. Okay, now this term, just remain it here, pull this minus k to here. So y plus z minus x is equals to yz into c1 minus 4 upon minus k. Now this whole term is another constant, let us suppose as constant a. So y plus z minus x, as mentioned in the question, is proportional to yz. If you remove the proportionality sign, the constant will come out to be as a. So y plus z minus x is proportional to yz itself. So our answer is yz. Okay, आंसर इज सी ऑप्शन विच इज वाई जेड. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि लेट पी बी द रिमाइंडर व्हेन 7 टू द पावर 84 इज डिवाइडेड बाय 342. 342 को देख के आपके पास एक टर्म आना चाहिए कि ये 343 के पास है, और 343 क्या होता है 7 क्यूब. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 क्यूब की पावर 28. ठीक है, 7 क्यूब कितना है 343 की पावर 28. अब मैं 343 को क्या लिख सकता हूँ 342 माइनस 1 की पावर 28. सिमिलरली यहाँ पे 7 की पावर 84 डिवाइड बाई 344 लिखा है, ये भी आपका कितना आएगा 343 की पावर 28 आएगा. और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 344 माइनस 1 की पावर 28. जब आप इस बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो इसके सारे के सारे टर्म्स डिविजिबल होंगे किससे 342 से, एक्सेप्ट द लास्ट टर्म, एंड द लास्ट टर्म इज 28c 28
342 की पावर 0, 1 की पावर 28, यानी कि ये होल टर्म अपॉन में 342 आएगा। सिमिलरली जो इसका लास्ट टर्म होगा, सिर्फ वो वाला टर्म जो है 344 से डिविजिबल नहीं होगा, बाकी सभी के सभी टर्म्स 344 से डिविजिबल होंगे। क्यों? क्योंकि बाकी सभी के सभी टर्म्स में ऊपर 344 आ रहा है, तो लास्ट वाला जो टर्म होगा उसमें आपका डिविजिबल नहीं होगा। सो द आंसर विल बी 28 डिवाइडेड बाई 344। ओके, सो इसका वैल्यू भी 1 आ रहा है, इसका भी वैल्यू 1 आ रहा है। ये था P, ये था Q। सो P का वैल्यू 1 है, Q का वैल्यू 1 है, तो P माइनस Q का वैल्यू कितना हो जाएगा? अल्टीमेटली आपका कितना हो जाएगा? 0। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर A, विच इज 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज दैट n is the smallest 5-digit number which when divided by 2, 2 square, 2 की power 3, 2 की power 4 and so on till 2 की power n leaves a remainder 1. Now let us solve this question in the rough. अच्छा, वो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था कि n एक स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर है, n एक मेरे पास स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर है, ओके, विच व्हेन डिवाइडेड बाई 2, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब एंड सो ऑन, ऐसे करते करते 2 की पावर n से डिवाइड होगा, तो रिमाइंडर क्या देगा मेरे को? 1। कहने का मतलब है कि n मॉड्यूलो 2, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब एंड सो ऑन टिल 2 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 1। यदि मैं n माइनस 1 करूं और तब मैं अगर इसके साथ मॉड लूं इनका, तो रिमाइंडर मेरा उस केस में क्या आ जाएगा? 0। उस केस में मेरा रिमाइंडर आएगा 0, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इन सब को मॉड्यूलस करने पे n माइनस 1 दे रहा है, यानी कि अगर मैं इन सब का एलसीएम ले लूँ, तो अब इन सब का एलसीएम ले लूँगा तो वही एक ही चीज़ है, एलसीएम इन सब का लूँगा तो कितना आएगा? वो 2 की पावर n ही आ जाएगा। कहने का मतलब है कि n माइनस 1 को मैं अगर मॉड करूँगा 2 की पावर n से, तो कितना ही आ रहा है? वो आपका 0 आना चाहिए, ठीक है, ये बात। नाउ कहने का ये मतलब है कि n माइनस 1 जो है इज अ मल्टीपल, वो एक मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है? इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2 टू द पावर n। सो n माइनस 1 कैन बी रिटन एज, it can be written as 2 to the power n into k, where k is any integer, not integer but a natural number, right? K belongs to any natural number. Now it must satisfy for all k and for all n, I mean for all k. अब देखो ऑप्शन में हमारे पास पहला ऑप्शन दे रखा है 12, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 13 और तीसरा ऑप्शन दे रखा है 14, चौथा ऑप्शन दे रखा है 15। और यहाँ पे हमको बोला है कि n जो है एक स्मॉलेस्ट, n इज द स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर। नाउ लेट अस कंटिन्यू। सपोज ये हमारे पास किसकी वैल्यूज है? ये n की वैल्यूज है, ठीक है। मैंने n की पहली वैल्यू एज अ ट्रायल को 12 रखा, तो n माइनस 1 की वैल्यू आई 2 की पावर 12 इंटू k, यही वैल्यू। अब k की वैल्यू को सपोज मैंने 1 रखा, तो ये कितना आ जाएगा? 2 की पावर 12 इंटू 1, यानी कि n की वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 12 प्लस 1। 2 की पावर 12 कितना होता है? 4096, प्लस 1 करोगे तो 4097 आ रहा है। बट द थिंग इज n की वैल्यू अगर ये आ रही है, लेकिन n की वैल्यू है स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है कि n की वैल्यू कितनी है? स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर। Now since it is the smallest 5-digit number and by putting k is equals to 1 we are getting 4097, and repeatedly we put k is equals to 2 also, then also we will be getting 2 की power 13, that is 8192, and if you add 8192 in that we will get 8193. So for k is equal to 2 also this is not going to be valid, but for k greater than equals to 3, that means for k is equal to 3 and number onwards this value can be satisfied. But the thing is for k is equals to 1 and 2 we are not getting the 5-digit number, so option A gets cancelled out. Let us move for option number B. Eventually for option number B also we are getting 2 की power 13 into k. 2 की power 13, what is 2 की power 13 is 8192. If we put k is equals to 1 we will be getting 8192 plus 1 is 8193. 8193 is a 4-digit number, also gets cancelled out. But for k is equals to 2, if you put, you will be getting 2 की power 14, which exceeds 4-digit number to enter into the 5-digit number. But the thing is for k is equals to 1 you can't figure out. I said that this condition must hold true for all k, but the thing is k is equals to 1 is not satisfying this condition, so the option number B is ruled out. Let us check for option number C, and yes, this is definitely our answer. Why? Because if you put here 14 and if you put here k is equals to 1, the starting value itself, you will be getting a number which is like greater than 10,000, because 2 की power 13 is 8192 and 2 की power 14 is, if you multiply it by 2 again, it will be 16384, and if you plus 1, so it will be 16385. The number we got, that 5-digit number, which is the smallest 5-digit number, by putting a value of n as the 14, and it is valid for all k. If you put k is equals to 1, 2, 3, 4 onwards, obviously for if k is equals to 1 is greater, if you put k is equals to 1, which is the smallest thing, the next numbers will obviously be turned out to be 5-digit numbers. So the smallest value is 16385,
And for what value of n? For value of n as 14 and for all k. Okay, so the answer is n is equals to 14. So the answer is option number C. Next question. If you look at this particular thing properly, if you multiply this by 2, you will get the same thing as written as here 532900, 532900, 532900. That means here 2p square. Now this is reduced to p square plus 1 whole square upon में 532900. Now this is a square of something. If you separate this out, you will get as 5329 into 10 square. Now this is also a square of something. Now what is the something? How to मतलब approximation कैसे करें इस चीज़ का कि ये किस का स्क्वायर है? So if we look, अगर हम 70 का स्क्वायर निकालें तो ऑलमोस्ट 4900 के आसपास आ रहा है और लास्ट डिजिट 9 है, यानी कि जो नंबर ये जिसका स्क्वायर है उसके यूनिट डिजिट में 3 होना चाहिए कि तभी हम जब 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 विल गिव अस 9. लेट अस ट्राई फॉर 73. इज इट द स्क्वायर ऑफ 73? लेट अस ट्राई. सो ये 21 हो जाएगा 1251, तो ये आ जाएगा 5329. देखिए 5329 आ गया और यहाँ पे आ गया, यानी कि ये 73 का स्क्वायर है, यानी कि ये 73 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर है, यानी कि ये पूरा का पूरा नंबर जो है 730 का होल स्क्वायर है. सो लाइक पी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन में 730 का होल स्क्वायर. नाउ for to get the minimum value of p, and the thing is this is an integer, and for to get the minimum value of p we must first make it a integer. ये integer कब होगा? सबसे minimum possible integral value क्या होनी चाहिए यहाँ पे? जब p square 1 की p square plus 1 की जो value है वो किसके बराबर हो जाए? या तो 0 के बराबर हो जाए. But the thing is p square they will be then -1 and p की कोई रियल वैल्यू नहीं आएगी. और अगर फिर अब पी स्क्वायर 1+1 का अगला नंबर क्या हो सकता है? 730 इटसेल्फ, क्योंकि अगर ये वैल्यू 730 होगी तो 7/730 कैंसिल आउट होकर वन हो जाएगी. तो भाई यही मिनिमम वैल्यू हो सकती है. वरना अगर आप इसको 730 इंटू 2 करोगे, 730 इंटू 2 करोगे तभी वो इंटीग्रल वैल्यू आएगी, लेकिन फिर पी स्क्वायर पी मिनिमम नहीं आ पाएगा. तो यहाँ पे सिर्फ यही वाला केस बन रहा है जो कि मिनिमम वैल्यू दे सकते हैं और पी की वैल्यू यहाँ पे 27 आ जाएगी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. बट द थिंग इज कि ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया था बाय द कमीशन. यूपीएससी कमीशन ने इसको इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया था. मुझे नहीं पता क्यों ड्रॉप किया. इस क्वेश्चन में मुझे कोई गड़बड़ी तो नहीं लगी है सच. इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं. इस क्वेश्चन को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, है ना. ये जो नीचे डिनोमिनेटर में दिया उसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आपका आंसर आ जाएगा ए बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी एक्स प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू ए बी एक्स. आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, सारे के सारे टर्म्स मैंने लिख दिया, टोटल 9 टर्म्स आ रहे होंगे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे इज इक्वल्स टू ए बी एक्स है. ए बी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा. मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन लेता हूँ. एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए प्लस बी. उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक्स को कॉमन ले लिया. कॉमन क्या आएगा अंदर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ये आ गया प्लस में जो लास्ट के कॉन्स्टेंट टर्म सोच रहे हो क्या हो जाएंगे? ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी दैट इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. अच्छा अब यहाँ देखते हैं ये कितना हो जाएगा. ये फिर से क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी यहाँ से मैंने कॉमन लिया तो कितना बचेगा? ए प्लस बी. ये पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास आ गई है. अब हमसे पूछ रहा है अल्फा और बीटा, इसके रूट्स दे रखे हैं. ठीक है. हमसे पूछ रहा है अल्फा बीटा यानी कि सम और प्रोडक्ट का सम कितना होगा. कहने का मतलब है कि यदि मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस ए प्लस बी, और अल्फा बीटा निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? ए बी. जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए बी माइनस ए माइनस बी. ठीक है. ए बी माइनस ए माइनस बी विच इज ऑप्शन नंबर बी एज द आंसर. Next question, consider a 2-digit number n, let p be the product of the digits of the number. Suppose the digits are x and y and the number we are getting as 10x plus y. The thing is, let p be the product of the digits. So product is basically xy. If p is added to the square of the digit in the tens place पे कौन सी digit है हमारी? x. अगर मैंने उसको ऐड किया तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? 84. इफ p इज एडेड टू द स्क्वायर ऑफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट है? y. अगर मैंने उसका स्क्वायर में अगर p को ऐड किया, लिखा है ना p इज एडेड टू द स्क्वायर ऑफ द डिजिट,
इन द यूनिट प्लेस ऑफ एन में कौन सी डिजिट है y, उसका स्क्वायर क्या है y स्क्वायर, y स्क्वायर में मैंने क्या ऐड किया p की वैल्यू क्या है xy, तो जब मैंने y स्क्वायर में xy की वैल्यू को ऐड किया तब मेरे पास नंबर आया 60. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन. इफ यू सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन you will be getting x square minus y square as 24, and if you will be adding this equation you will get x plus y whole square, that is equals to 144. That means x plus y is equals to 12. Now from this equation we can write x square minus y square as x plus y into x minus y. From here, with the help of this, since x plus y is 12, so from here you can calculate x minus y as 2. X plus y as 12, x minus y is 2. If you solve that, you will get the answer as y is 5 and x is 7. Okay. If you solve these two equations, that x plus y is 12 and x minus y is 2, you will get x equal to 7, y equals to 5. It is asking us to find the value of what is p plus n. So the number is basically 10 into 7 plus 5, that is 75. So our number is 75 and the product of our digits is 35. 75 plus 35 is what? 110. So our answer is 110 itself. Now it says a mixture of 100 liter contains kerosene and turpentine oil in the ratio this is 3:2. The thing is, if you assume a constant k, then the kerosene is basically 3k and turpentine oil is 2k. If you add this, the total will amount to be 5k. 5k is 100 liters, so k is 20 liters. That means kerosene is 60 and turpentine oil is 40 liters. It says that what is the minimum quantity of kerosene in liters. So now we are adding something. What we are adding? We are adding kerosene in that mixture. In what mixture? In that mixture in which we are having kerosene as 60 and turpentine oil as 40. Okay. मतलब हमें ये कह रहा है कि इस मिक्सचर में हमने केरोसिन और टर्पेंटाइन ऑयल वाले मिक्सचर में हमने केरोसिन को ऐड किया. अब कितना केरोसिन ऐड करें जिससे कि रिजल्टिंग मिक्सचर में 20% केरोसिन हो जाए. तो चलो हमने माना कि हमने x लीटर केरोसिन को ऐड किया, तो केरोसिन में क्या हो जाएगा? 60 प्लस x हो जाएगा. और टोटल मिक्सचर कितना हो गया? फिर टोटल मिक्सचर जब आप इन दोनों को, जब आपने पहले कितना था 100, अब कितना हो जाएगा? 100 प्लस एक्स, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा क्वांटिटी क्या डाली केरोसिन की? x. तो टोटल मिक्सचर हो गया 100 प्लस एक्स. अब कह रहा है कि इस वाले मिक्सचर में केरोसिन का जो परसेंटेज है, जो केरोसिन का परसेंटेज है वो 20% है. कहने का मतलब है कि केरोसिन जो है यहाँ पे आएगा अपॉन m, केरोसिन का मिक्सचर अपॉन टोटल मिक्सचर इंटू 100. इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 20. दैट मीन्स इट इज़ 1/5. ओके, इट इज़ 1/5. केरोसिन कितना है? 60 प्लस एक्स. मिक्सचर कितना है? 100 प्लस एक्स. इसकी वैल्यू 1/5 है. इट इज़ 300 प्लस 5x, दैट इज इक्वल्स टू 100 प्लस एक्स. बट द थिंग इज कि ये वैल्यू आ रही है नेगेटिव. एक्स इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव. एंड अगर आप कोई चीज़ डाल रहे हो तो यहाँ पे x लेस देन 0 आ गया, लेकिन हम यहाँ पे बेसिकली एक क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं. तो क्वांटिटी जो हम ऐड कर रहे हैं वो तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, दैट इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी. अगर हम कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x हमारा जो है वो नेगेटिव आ गया. अब x नेगेटिव आ गया, x जो है नेगेटिव आ गया, तो पॉसिबल ही नहीं है. मतलब कि x पॉजिटिव आना चाहिए था तब जाके हम कोई क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं. x नेगेटिव आ गया तो वो नॉट पॉसिबल है. ठीक है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन? A lamp is kept on a vertical pole. The height of the top of the lamp above the ground is 5√3h. The perpendicular distances of the bottom of the pole from the two adjacent walls meeting perpendicularly are 0.7 meter, 2.4 meter. What is the distance of the top of the lamp from the corner point of the walls of the ground? ठीक है, इस क्वेश्चन को रफ में करते हैं. विजुअलाइज करना इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बोल रहा है कि यहाँ पे एक लैम्प पोस्ट है. ठीक है, एक लैम्प पोस्ट ऐसे खड़ी है ना. यहाँ पे एक लैम्प है, मतलब कुछ ऐसा लाइट वाइट फेंक रही है. ये इसका बॉटम है. यहाँ पे ऐसे हमारे पास मतलब क्या वॉल टाइप बोल सकते हैं. ठीक है, एक वॉल ऐसे जा रही है और इसी से अटैच्ड एक वॉल ऐसे जा रही है. ठीक है, अगर आप इसको 3D में थोड़ा सा विजुलाइज कर पाएँ. कहने का मतलब ये है कि इसका जो बॉटम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इस वॉल की, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है वो हमको दे रखी है. कितनी? एक डिस्टेंस हमको दे रखी है 0.7 मीटर की, है ना, और एक डिस्टेंस दे रखी है 2.4 मीटर की. ठीक है, और इस लैम्प की जो ये हाइट है, यहाँ से ग्राउंड की जो हाइट है वो कितनी है? 5√3/2. दिस हाइट इज़ 5√3/2. अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ द वॉल, ये तो हमको दे रखी है. नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑफ द लैम्प, यानी कि ये जो टॉप ऑफ द लैम्प है यहाँ से किसकी डिस्टेंस पूछ रहा है? फ्रॉम द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द वॉल्स ऑन द ग्राउंड. यानी कि कॉर्नर पॉइंट कौन सा है? ये वाला कॉर्नर पॉइंट है, और ये पूरा ग्राउंड समतल ग्राउंड है. तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस पूछ रहा है बेसिकली. ठीक है, ये जो है ये डिस्टेंस पूछ रहा है. तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो ध्यान से देखिएगा. अगर मैं इसको बोलता हूँ A, इसको बोलता हूँ B,
इसको बोलता हूँ सी, इसको बोलता हूँ पी, इसको बोलता हूँ क्यू। तो यहाँ पे मेरे को निकालना है ए सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर अगर आप ध्यान से देखो तो ट्रायंगल ए बी सी में ए सी स्क्वायर, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है बिकॉज ये ग्राउंड है, तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगी। अब मेरे को चाहिए बी सी स्क्वायर, ठीक है, मेरे को चाहिए बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो 2.4 आपको दे ही रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस जो कि ए सी के बराबर है तो 0.7 है। तो अब ट्राइंगल बी सी क्यू में अगर आप देखो तो बी सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर। बी क्यू स्क्वायर की वैल्यू आपको 2.4 दे रखी है, 2.4 का होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 0.7 का होल स्क्वायर, और आपको पता है ये तो स्टैंडर्ड वाले होते हैं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2.5। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5। इस बी सी की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करिए, ए बी की वैल्यू ऑलरेडी आपको हाइट दे रखी है, तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर 25 इंटू 3 75/4 प्लस 25/10 यानी कि 5/2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 75/4 प्लस 25/4 दैट इज इक्वल टू 100/4 दैट इज इक्वल टू 25। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू 25 है, ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, ठीक है। यानी कि जो हमसे ये डिस्टेंस पूछा था कि डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द टू वॉल्स दैट इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सी इज द लेंथ ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है। ए बी इज अ कॉर्ड, ए बी हमारे पास एक कॉर्ड है, ठीक है, इसका सेंटर है सी। ई इज अ पॉइंट ऑन ए बी, सपोज ई एक पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस हमको दे रखी है सी की वैल्यू 13 है, सपोज मैंने इसको बोला डी और मैंने इसको बोला आर। नो व्हाट इज ए ई क्रॉस ए बी, तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि अगर कोई भी कॉर्ड ड्रॉ हो रहा है और सेंटर से आपने उस कॉर्ड पे एक लाइन ड्रॉप करी है जो कि मीट कर रही है सपोज पॉइंट ई पे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए ई डॉट ए ई क्रॉस ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर माइनस ए ई का स्क्वायर। कहने का मतलब है कि जो रेडियस आपका होता है वो माइनस ए, जो डिस्टेंस आपको दे रखी है फ्रॉम द सेंटर टू दैट पर्टिकुलर द बेसिकली द लेंथ ऑफ द लाइन फ्रॉम द सेंटर टू ऑन दैट कॉर्ड, सो आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर कितना दे रखा है मेरे को, रेडियस 20 है तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 माइनस डी कितना दे रखा है सच दैट सी की वैल्यू कितनी है 13, तो 13 स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, तो 10 में से 9 गया 1, 9 में 6 गया 3 में से 1 गया 2, 231 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। द इनसाइड ऑफ अ बाउल इज पार्ट ऑफ अ स्फीयर, मेरे पास एक स्फीयर है। व्हेन वाटर इज पुट इनटू द बाउल टू अ डेप्थ डी, डेप्थ डी का क्या मतलब होता है, यानी कि अगर मेरे पास ये है ये, व्हेन वाटर इज पुट इनटू द बाउल टू अ डेप्थ डी, मेरे पास एक वाटर है, ठीक है, एक वाटर है, वाटर ऐसे ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, ये पूरा वाटर है, यानी कि ये जो लेंथ है ये वाली, ये मेरे को डेप्थ डी दे रखी है। द वाटर सरफेस बिकम्स अ सर्कल ऑफ रेडियस 2d, यानी कि वाटर का सरफेस है, जो वाटर का सरफेस है वो एक सर्कल बन गया, यानी कि ये आप देखो ध्यान से, तो ये वाला जो ये बना है ये एक सर्कल बन गया और इसका रेडियस मेरे को दे रखा है 2d। नाउ द थिंग इज कि ये डिस्टेंस अगर मैं स्फीयर का सेंटर ये मानता हूँ तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r माइनस डी, क्योंकि ये r माइनस डी है और प्लस डी करोगे तो टोटल वैल्यू r हो जाएगी, तो ये वैल्यू r माइनस डी है। अगर ये सेंटर है सी है और वाटर का लेवल का जो वाटर का जो सर्कल है वो सेंटर यहाँ तक है, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r माइनस डी। सिमिलरली ये डिस्टेंस आपको दे रखी है 2d, हमको स्फीयर का रेडियस निकालना है r, मैंने बोला कि रेडियस ऑफ द स्फीयर r है, ठीक है, तो ये r है, ये r माइनस डी ये 2d है, तो यहाँ पे वो लगा दो क्या बोलते हैं ये पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से r स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4d स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2rd, r स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो 2r स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3d स्क्वायर, है ना, तो रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी ये 5d स्क्वायर है, हाँ 5d स्क्वायर है, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी एक मिनट 2rd बेसिकली, सो अगर मैं यहाँ से d से d कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2r की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5d बेसिकली, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/2d यानी कि 2.5d विच इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 3, यानी कि तीनों की तीनों साइड की हमको डिस्टेंस दे रखी है। अगर मैं सपोज ए बी सी मान लूँ, ए बी की वैल्यू 2 है, बी सी की वैल्यू 4 है, ए सी की वैल्यू 3 है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स बी सी एट डी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स बी सी एट डी यानी कि पॉइंट डी पे मिला, और बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी मीट्स ए डी एट डी यानी कि इस वाली लाइन पे ये ई को मिला। अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ ए इज टू ई डी। अच्छा, ए इज टू ई डी निकालने के पहले हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाएं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाऊं तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, अगर ये वाला एंगल है इसको एक लाइन बाइसेक्ट कर रही है तो उसके अपोजिट वाले साइड से यानी कि ए बी
यानी कि ये एंगल ए द साइड्स कंटेनिंग एंगल ए उनका रेशियो यानी कि ए बी अपॉन ए सी दैट इज इक्वल्स टू जिस जो ये लाइन डिसाइड जो ये लाइन है ये जो उसको डिवाइड करे एंगल ए को और जिस साइड पे गई है तो कितना हो जाएगा बी डी अपॉन डी सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने देखा कि बी डी अपॉन डी सी की वैल्यू कितनी आ रही है ए बी अपॉन ए सी कितना है 2/3। तो मैं देखूँ तो डी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2 बी डी। अब बी डी, अब देखो बी सी क्या हो जाएगा बी डी प्लस डी सी। अब बी डी प्लस डी सी की वैल्यू कितनी 3/2 बी डी। तो ये कितना हो जाएगा 5/2। 5/2 की वैल्यू बी सी के बराबर है। बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 हो जाएगा। तो बी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/5। बी डी की वैल्यू हो जाएगी कितनी 8/5। बी डी की वैल्यू जब हो गई 8/5। अब हमसे कह रहा है कि इसका निकालो। अब ए इज टू ई डी, अगर ध्यान से देखो तो ये वाली जो लाइन गई है तो अगर मैं इस पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाऊं तो साइड कंटेनिंग दिस पर्टिकुलर एंगल यानी कि ए बी अपॉन बी डी, तो ए बी अपॉन बी डी दैट इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई डी, है ना, ए ई अपॉन ई डी। तो ए अपॉन ई डी हमको चाहिए, ए बी अपॉन बी डी कितना है, ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 डिवाइड बाई 8/5, तो 2 × 5/8 हो जाएगा तो 4, तो 5:4 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम याद रखिएगा कि जिस भी एंगल का बाइसेक्ट हो रहा है उस एंगल को कंटेन करने वाली साइड्स का रेशियो इज इक्वल्स टू और जो लाइन गई है जिस लाइन जो थर्ड साइड को डिवाइड करी है उसका रेशियो, तो ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्राइंगल ABC द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ए कट्स BC। फिर से वही क्वेश्चन है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल है यानी कि इस एंगल का बाइसेक्टर कट्स द BC कहाँ पे कट कर रहा है डी पे। इफ ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 10 देन बी डी इज टू डी सी इज 3:1। देखिए फिर से एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगेगा, कौन सा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, यानी कि ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी सी 3:1 दे रखा है तो 3/1 हो गया। सो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स ए सी। अब हमको दे रखा है ए बी प्लस ए सी की वैल्यू 10 है, ए बी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए तो कितना आ जाएगा 4 ए सी की वैल्यू 10 आ जाएगी, ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर्स। सो ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। इन अ ट्राइंगल दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं ए बी को बोलता हूँ सी, बी सी को बोलता हूँ ए, तो सी प्लस ए की वैल्यू 7.1 दे रखी है, बी सी को मैंने बोला ए, सी ए को मैंने बोला बी, ये 12.1 दे रखी है, सी ए को मैंने बोला बी और ए बी को मैंने बोला सी, ये कितना दे रखा है 7.2। इन दोनों इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, 2 - 1 करो, 2 - 1 करोगे तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो बी माइनस सी की वैल्यू कितनी आ रही है 5, और जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ बी माइनस सी और मेरे को थर्ड इक्वेशन क्या देखिए बी प्लस सी की वैल्यू 7.2 दे रखी है, ऐड करेंगे तो 2b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12.2, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.1, बी की वैल्यू 6.1 है तो यहाँ रखेंगे तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.1, सी की वैल्यू 1.1 आ गई तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.1 माइनस 1.1 दैट इज 6.0। ए की वैल्यू 6.0 आ गई, बी की वैल्यू 6.1 आ गई, सी की वैल्यू 1.1 आ गई। तो हेरॉन्स फार्मूला से हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आइए रफ में देखते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी आ रही थी 6.0, बी की वैल्यू आ रही थी 6.1 और सी की वैल्यू कितनी आ रही थी 1.1। ठीक है ना। अच्छा, नाउ अब हेरॉन्स फॉर्मूला से इसका निकालते हैं, √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये होता है। एस क्या होता है सेमी पेरीमीटर, इन सबको ऐड अप करिए तो कितना आएगा आपके पास 13.2 डिवाइड बाई 2, सेमी पेरीमीटर होता है एस, मतलब कि पेरीमीटर का हाफ, 112 तो 6.6 आ जाएगा। तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा 66 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई, नो 6.6 माइनस 6.0 इस 0.6 कितना हो जाएगा 6/10 मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस बी करोगे तो 6.6 माइनस 6.1 कितना हो जाएगा 0.5 को लिख सकते हो 5/10 मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस सी माइनस 1.1 5.5, तो 5.5 को क्या लिख सकते हो 55/10। ये वाला 10 ये वाला 10 ये वाला 10 ये वाला 10 बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/100 इंटू अंडर रूट में 66 को मैं लिख सकता हूँ 11 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 11, तो एक 11 बाहर आएगा, एक 6 बाहर आ जाएगा और एक 5 बाहर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 30 इंटू 11 डिवाइड बाई 100, दिस goes out to be 33 डिवाइड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 3.3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा इसका एरिया 3.3 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी।
द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एडजेसेंट साइड्स आपको दे रखा है 10 और 8। द व्हाट इज द एरिया, एरिया हमको पता है, अगर हम वेक्टर, अगर आपने कभी भी वेक्टर पढ़ा हो तो उसको हम लिखते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी कि बेसिकली जब मुझे इसका एरिया निकालना हो तो उसका मॉड्यूलस होता है मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी इंटू साइन थीटा, मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी इंटू साइन थीटा। सो मॉड्यूलस ऑफ ए मेरे को एक साइड दे रखा है 10 और मॉड्यूलस ऑफ बी दे रखा है मेरे को 8। साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन थीटा यदि मैं यहाँ से लूँ तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना दे रखा है 150 डिग्री, तो साइन 150 हो जाएगा। तो बस इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 80 इंटू साइन 90, इसको बोल सकते हैं साइन 90 इंटू 1 + 60, साइन 90 इंटू 1 + 60 इज बेसिकली कॉस 60, और सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो ऑपरेटिंग एंगल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, तो 80 इंटू कॉस 60 कितना हो जाएगा 80 इंटू 1/2 यानी कि 40, तो 40 स्क्वायर सेंटीमीटर विल बी द आंसर। द मेजर ऑफ एन एंगल फाउंड बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ए एंड सी ऑफ द ट्रायंगल एबीसी इज 130 डिग्री। बहुत ही सिंपल सवाल है, देखिए ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। एंगल ए का बाइसेक्टर यहाँ से आया, एंगल बी का बाइसेक्टर कुछ ऐसे आया, है ना। सपोज ये पॉइंट कहीं आई पे मिलता है जहाँ पे इनका इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये वाला एंगल हमको दे रखा है 130 डिग्री। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में वो लगाऊं, ट्रायंगल ए आई सी में सम ऑफ प्रॉपर्टी लगाऊं, तो एंगल A/2 प्लस एंगल C/2 प्लस 130 डिग्री की वैल्यू यहाँ से 180 आ जाएगी। तो A + C इज इक्वल्स टू 100 दे रखा है, और हमको पता है कि A + B + C की वैल्यू 180 होती है, तो A + C की वैल्यू 180 - B हो जाएगी यहाँ से, है ना। यहाँ से कितनी हो जाएगी 180 - B की वैल्यू 100 हो जाएगी, तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 डिग्रीज। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज़ 80 डिग्री। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल है, बस मैनिपुलेशन करना है। कैसे, log 10 2000 को आप लिख सकते हो क्या 3 + log 2 to the base 10 लिख सकते हो, प्लस log इसको लिख सकते हो 2 + 2 log 2 to the base 10 ये लिख सकते हो, प्लस ये कितना हो जाएगा 8 log 5 स्क्वायर, तो 8 log 5 to the base 10 प्लस इसको क्या लिख सकते हो, खोलेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 5 टाइम्स log 10 4 प्लस log 5 to the base 10, तो 5 log 5 to the base 10 प्लस 5 टाइम्स या 10 टाइम्स log 2 to the base 10 ये हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इस सबको पूरा खोलोगे, आपको लॉगरिथम्स की कोई सारी प्रॉपर्टीज अगर याद है अच्छे से, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। अब देखो जितने log 2 वाले टर्म्स उनको एक साथ ले, तो log 2 यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो 10 + 2 + 1 13, तो हो जाएगा 13 log 2 to the base 10। अब जितने log 5 वाले उनको एक साथ लो, यानी कि ये और ये, तो ये भी आपका 13 ही दे रहा है, तो 13 log 5 to the base 10 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म मेरे पास कितने बच रहे हैं 3 + 2 दैट इज 5, तो टोटल 5, यानी कि ये फाइनल आंसर आएगा मेरे पास। अब इस वाले को यदि आप ध्यान से देखो तो 13 कॉमन लोगे तो बचेगा क्या log 2 to the base 10 प्लस log 5 to the base 10, तो इसको काट पीट के 1 हो जाएगा, तो ये तो हो गया आपका 13 + 5 कितना हो जाएगा आपका 18, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विच इज 18। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। अच्छा, अब ध्यान से यदि आप इसको देखें तो कुछ नहीं करना है। अगर इस क्वांटिटी को ध्यान से देखो तो ये थोड़ी सी मतलब ऑड सी लग रही है, अच्छी नहीं लग रही, तो अगर मैं इसको 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं इसमें से तो अच्छी लगने लग जाएगी, है ना। अच्छी मतलब अच्छी इन द सेंस की देखने में अच्छा लग रहा है। तो अगर मैं इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये आ जाएगा। 1 सब्ट्रैक्ट करने के लिए मेरे को इसको 1 बनाना पड़ेगा, तो 4x की वैल्यू 1 तभी हो सकती है जब x की वैल्यू 0 होगी। जैसे ही x की वैल्यू 0 हुई ये वैल्यू 1 बनेगी, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 10 स्क्वायर क्यूब 4 5, तो ऊपर क्या बन जाएगा 5, नीचे क्या है, अगर मैं x को 0 रखता हूँ 5/5 विच इज़ 1 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो देखो RHS में भी 1 आ गया, LHS में 1 आ गया, तो LHS में 1 कब आएगा, जब आप x की वैल्यू को 0 रखोगे, 0 रखोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा विच इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब इस वाले सवाल पे आते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे आपका पास साइन टू द पावर 4 अल्फा प्लस कॉस टू द पावर 4 अल्फा की वैल्यू 1/2 आ गई। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन टू द पावर 4 अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1/2 है, तो ये हो जाएगा 1, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा 4,
ध्यान से आप देखो तो ये फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा साइन स्क्वायर 2 अल्फा का, ठीक है, साइन स्क्वायर 2 अल्फा का, और यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस दैट इज इक्वल्स टू 1, तो साइन स्क्वायर 2 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1, यानी कि साइन 2 अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-1, लेकिन चूंकि अल्फा की वैल्यू 0 से π/2 में है तो साइन 2 अल्फा की वैल्यू -1 तो हो ही नहीं सकती, तो साइन 2 अल्फा की वैल्यू आपके पास +1 ही होगी। अच्छा, साइन 2 अल्फा की वैल्यू +1 हो गई तो कॉस 2 अल्फा की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि हमको पता है कि साइन कॉस 2 अल्फा की वैल्यू होती है √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 है तो √1 माइनस 1 इज 0, तो कॉस 2 अल्फा की वैल्यू यहाँ से 0 आ गई। साइन 2 अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा की वैल्यू कितनी है 1 + 0 विच इज 1। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इस क्वेश्चन को हम रफ में करते हैं, थोड़ा सा लेंदी जाएगा। यहाँ पे हमसे बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट है कि 1 माइनस साइन अल्फा की पावर 6 इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा टू द पावर 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 3, ये होगा, ठीक है। तो पहले हम इसको चेक करते हैं कि क्या है सही, नहीं कि हम LHS को एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओ a³ माइनस b³ का, इसको आप ऐसे लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का होल क्यूब, तो ये a³ माइनस b³ बना, तो फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ये हो जाएगा। नाउ दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे आप लिखो इसको साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा को आप लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ अंदर वाले टर्म्स में सब में कॉस है, तो मैं भी इसको कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट इज इक्वल्स टू, बाहर तो आपका कॉस स्क्वायर अल्फा ही है, अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा को आप लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और इसका होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू ये हो जाएगा 1 + 1 कितना होगा 2, और 2 + 1 हो जाएगा 3, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, सॉरी प्लस कॉस की पावर 4 अल्फा, तो कॉस की पावर 4 अल्फा हो जाएगा, माइनस में 2 कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा, माइनस में तो -3 कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया। ध्यान से अगर आप इसको रीअरेंज करोगे तो कितना आ जाएगा, कॉस की पावर 4 अल्फा -3 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 3, और यहाँ क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। एकदम सेम टू सेम, एकदम सेम टू सेम वर्डिंग जो है यहाँ पे भी लिखी हुई है, ठीक है, सेम टू सेम वर्डिंग। तो बस पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा हमसे प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि इसको प्रूफ करो, क्या दूसरा हमसे बोल रहा है कि कॉस अल्फा की पावर 8 माइनस साइन अल्फा की पावर 8, इसको बोल रहा है क्या 2 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा की पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। प्रूफ करते हैं, अगर सही होगा तो होगा। ये क्या हो जाएगा कॉस की पावर 4 अल्फा का होल स्क्वायर माइनस साइन की पावर 4 अल्फा का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस की पावर 4 अल्फा प्लस साइन की पावर 4 अल्फा इंटू कॉस की पावर 4 अल्फा माइनस साइन की पावर 4 अल्फा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। इस वाले टर्म को मैं एक्सपेंड करके और लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा। नाउ दिस पर्टिकुलर टर्म इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू में 1, ये तो 1 ही हो जाएगा, तो बचा क्या मेरे पास सिर्फ कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। यदि मैं इन दोनों को खोल दूं यहाँ से तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा की पावर 4 प्लस 2 साइन अल्फा की पावर 4 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, ये आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यदि मैं इसको लिखूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अच्छा एक मिनट साइन स्क्वायर अल्फा है तो एक मिनट 1, तो इसको लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। लेकिन एक दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा की पावर 4 प्लस 2 साइन अल्फा की पावर 4 कॉस स्क्वायर अल्फा।
अगर आप इसको अंदर खोलोगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 साइन अल्फ़ा की पावर 4 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, ये वाला टर्म मैच कर गया। इसको खोलोगे तो -2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा की पावर 4, ठीक है, ये वाला टर्म भी मैच कर गया, लेकिन अब बाद में ये वाला टर्म बच रहा है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपके पास क्या है 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, लेकिन यहाँ पे मेरे पास है 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, जो कि रॉन्ग है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही था, हमने प्रूफ कर दिया था, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 ओनली। नेक्स्ट इज 1 / कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसको मैं ओपन करता हूँ तो क्या हो जाएगा 1 / साइन प्लस कॉस अपॉन साइन, साइन ऊपर जाएगा तो 1 + कॉस, ये आपका हो जाएगा p, और आपका q ऑलरेडी दे रखा है विच इज 1 / साइन, तो p स्क्वायर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन 1 + कॉस का होल स्क्वायर, माइनस में 2 टाइम्स साइन अपॉन 1 + कॉस इंटू 1 / साइन, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो साइन स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स 1 + कॉस का होल स्क्वायर अपॉन 1 + कॉस का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 - कॉस स्क्वायर माइनस 2 1 + कॉस होगा ना, तो माइनस कितना हो जाएगा -2 कॉस, ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर -2 कॉस -1 माइनस कॉस स्क्वायर प्लस 2 कॉस प्लस 1 अपॉन में 1 + कॉस का होल स्क्वायर, तो माइनस में c+1 का होल स्क्वायर अपॉन c+1 का होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनल आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा -1, ठीक है। अ टावर, अब यहाँ पे आते हैं, हाँ ये वाला क्वेश्चन है, कोसेक अल्फा माइनस सेक अल्फा इज ऑलवेज पॉजिटिव, देखिए 1 / साइन अल्फा माइनस 1 / कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो साइन अल्फा और कॉस अल्फा दोनों ही पॉजिटिव होंगे, तो ये वाली वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, बट द थिंग इज कि यहाँ पे क्या आएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, अगर अल्फा की वैल्यू 0 से लेकर π/4 के बीच में है, ठीक है, 0 से लेकर 42 तक है, उस वाले केस में कॉस अल्फा जो है साइन अल्फा से बड़ा हो जाएगा, यानी कि कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यानी कि ये वाली टर्म ग्रेटर देन 0 आएगी तो टर्म पॉजिटिव रहेगी, बट एज सून एज द अल्फा क्रॉसेस द एंगल ऑफ π/4 एंड गोज टुवर्ड्स π/2, देन द थिंग इज दैट साइन अल्फा बिकम्स मोर देन कॉस अल्फा, इफ साइन अल्फा बिकम्स मोर देन कॉस अल्फा देन ऑब्वियसली कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इज लेस देन 0, दैट इज नेगेटिव, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये 0 से लेकर π/4 में पॉजिटिव है और π/4 से लेकर π/2 में नेगेटिव है, तो ऑलवेज पॉजिटिव कहना इज टोटली रॉन्ग, सो फर्स्ट ऑप्शन इज फॉल्स। इस वाले केस में देखें, अगर मैं अल्फा को, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर मैं अल्फा को कितना π/3 रख लेता हूँ, तो tan π/3 की तो tan 60, तो √3 माइनस कॉट 60 कितना हो जाएगा 1/tan 60, यानी कि 1/√3, तो अब देखो √3 माइनस 1/√3 कौन बड़ा है, जाहिर सी बात है √3 बड़ा है, √3 बड़ा है, तो ये वाला टर्म तो मेरा पॉजिटिव आ गया, और मैंने अल्फा भी π/3 लिया जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, लेकिन इसने तो कह रहा है ऑलवेज नेगेटिव है, मैंने तो आपको इंस्टेंस दिखा दिया कि अल्फा की वैल्यू π/3 रखने पे जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है हमेशा वैल्यू पॉजिटिव देगा, हमेशा नहीं, मतलब कुछ कुछ केसेस में पॉजिटिव देगा, अब इसी केस में पॉजिटिव आ गया तो ऑलवेज नेगेटिव तो गलत है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, सो नाइदर 1 और 2 इज करेक्ट। अ टावर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एक टावर है वो एक पॉइंट ए पे 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है, बी इज अ पॉइंट वर्टिकली अबव ए एंड ए बी इज इक्वल्स टू एच, इसका एच दे रखा है, ये वाला एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर मेजर फ्रॉम बी, यानी कि बेसिकली ये एंगल 30 था, तो ये क्या बोलते हैं इसको, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के हिसाब से ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, अगर हमसे बोले हाइट ऑफ द टावर, लेट अस सपोज द हाइट ऑफ द टावर इज h डैश, है ना, और ये पॉइंट है O, तो मैंने बोला कि tan 60 एक बार लगाओ, तो tan 60 कितना हो जाएगा, इस वाले ट्रायंगल में tan 60 लगाओ, इस वाले ट्रायंगल में, तो tan 60 क्या हो जाएगा h डैश अपॉन OA, ठीक है, उसके बाद tan 30 लगाओ इस वाले ट्रायंगल में, है ना, ये जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है इस वाले ट्रायंगल में tan 30 लगाओ, सो tan 30 इज इक्वल्स टू h अपॉन OA, सो 1/√3 इज इक्वल्स टू h अपॉन OA, OA की वैल्यू कितनी है √3h को यहाँ पे रखो, तो h डैश की वैल्यू हो जाएगी √3h, दैट इज इक्वल्स टू tan 60 की वैल्यू √3 है, तो h डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3 × √3 इज 3, तो h डैश की वैल्यू हो जाएगी 3h, h डैश को मैंने क्या माना था हाइट ऑफ द टावर, वही हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो h डैश की वैल्यू कितनी है 3h, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो अगर साइन अपॉन 1 माइनस कॉस अपॉन साइन प्लस कॉस अपॉन 1 माइनस साइन अपॉन कॉस, तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन साइन माइनस कॉस, प्लस ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस माइनस साइन, ठीक है,
तो माइनस साइन यहाँ पे रखते हैं, या फिर माइनस साइन यहाँ रख देंगे, तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस माइनस साइन हो जाएगा। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस माइनस साइन, तो ये बनेगा क्या, कॉस प्लस साइन, विच इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो सी मतलब कॉस, एस मतलब साइन। द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, अगर ये सर्कल है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, तो व्हाट इज द, अगर एक आर्क है मेरे पास है ना, इसको हम बोलते हैं आर्क, दिस इज एन आर्क, ये एक आर्क हो गई। आर्क की लेंथ मेरे को दे रखी है कितनी, पाई सेंटीमीटर, और रेडियस 4 दे रखा है। हमसे पूछा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, यानी कि हमसे थीटा पूछ रहा है। हमको रिलेशन पता है क्या, एस इज इक्वल टू आर थीटा, वेर एस इज इक्वल टू पाई। एस क्या होता है, लेंथ ऑफ द आर्क, आर होता है रेडियस ऑफ द सर्कल, और थीटा होता है एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। ठीक है, ये आपका आर हो जाएगा और थीटा आपका रेडियन में होगा, तो एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो एस की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को, पाई सेंटीमीटर, आर की वैल्यू देखिए 4 सेंटीमीटर, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, पाई बाई 4, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3√3, ये तो डायरेक्टली इक्वेशन है। अगर कॉट थीटा को मैक्स मान लूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3√3x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको आप ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x माइनस √3x प्लस 6 इक्वल टू 0 ऐसे लिख पाओगे, तो हो जाएगा x माइनस 2√3 माइनस √3x माइनस 2√3। तो या तो x की वैल्यू √3 आ रही है, या तो x की वैल्यू 2√3 आ रही है, यानी कि कॉट थीटा या तो √3 आ रहा है, नहीं तो कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ से 2√3 आ रही है। टैन थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1/√3, और यहाँ से टैन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। सवाल ये है कि मुझे कौन सी वैल्यू लेनी है। तो थिंग इसके क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि थीटा की वैल्यू पाई/6 से बड़ी है, और टैन थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, टैन थीटा एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। थीटा की वैल्यू यदि पाई/6 से बड़ी तो मिनिमम वैल्यू मेरे पास 1/√3 हो सकती है, उससे कम तो नहीं होगी। लेकिन चूंकि 1/2√3 जो है 1/√3 से भी कम है, लेकिन द थिंग इज कि टैन थीटा की वैल्यू 1/√3 से कम हो ही नहीं सकती, तो ये वाला ऑप्शन तो गया। तो टैन थीटा की वैल्यू 1/√3 है। ठीक है, अब टैन थीटा की वैल्यू 1/√3 है, तो यहाँ पे मैं एंगल बनाऊँ तो थीटा ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3, तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, और कॉस टू थीटा कितना हो जाता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है, तो 1 माइनस 2 इंटू 1/4 विच इज़ 1/2, तो 1/2। तो साइन थीटा प्लस कॉस टू थीटा की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1/2, दैट इज इक्वल्स टू 1, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है, हमसे बोल रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू x प्लस वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4xy है, वेयर x एंड y आर पॉजिटिव अनइक्वल, ध्यान दीजिएगा अनइक्वल रियल क्वांटिटीज। सो वी नो बाय प्रॉपर्टी दैट साइन स्क्वायर थीटा की कोई भी वैल्यू हो वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है, वो हमेशा 0 से 1 के बीच लाई करती है। कहने का मतलब है कि अगर ये इसके बराबर है तो जाहिर सी बात है इसको भी यहाँ पे सेटिस्फाई करना चाहिए क्या, x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 4xy मस्ट लाई बिटवीन 0 and 1, that's it. So x plus y का whole square must lie between 0 and 4xy. So x plus y का whole square minus 4xy must lie between 0 and 0. अगर ये वाला टर्म पूरा 0 के बीच में ही लाई कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये टर्म 0 खुद ही है। अरे मतलब ये कहने का हुआ कि अगर ये वाला जो टर्म है वो 0 से 0 में लाई कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि क्या x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy इज इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू वाई। बट द थिंग इज कि हमको क्वेश्चन में अनइक्वल दे रखा था, लेकिन हमने सॉल्व किया पूरा अच्छे से सॉल्व किया, हमारे पास ये निकल के आया कि x की वैल्यू y के बराबर है ना, x की वैल्यू तो y के बराबर है, यानी कि वो दीज आर बेसिकली रियल इक्वल क्वांटिटीज, लेकिन क्वेश्चन में तो अनइक्वल दे रखा है, तो पहला स्टेटमेंट इज रॉन्ग, पहला स्टेटमेंट हमारे पास रॉन्ग हो गया। दूसरा हमको बोल रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू x प्लस 1/x है। ठीक है भाई, अगर ये x प्लस 1/x है और वेयर x इज अ पॉजिटिव रियल क्वांटिटी, रियल क्वांटिटी के लिए मैं इसको क्वाड्रेटिक बनाता हूँ, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में, अगर आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करो तो इसको यहाँ लाओगे माइनस एक्स साइन प्लस कॉस प्लस 1 इक्वल टू 0, मेरे पास ये क्वाड्रेटिक बना। और क्वाड्रेटिक में क्वेश्चन में बोल के रखा हुआ है क्या कि x की वैल्यू है रियल, x की वैल्यू है रियल, x को रियल आने के लिए डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, ये हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन 2 थीटा की वैल्यू जो है यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ रही है, कहने का मतलब है कि साइन 2 थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ रही है। लेकिन 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 यहाँ पे आपको स्टॉप करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको दोबारा सोचना पड़ेगा क्या कि जो आपकी साइन 2 थीटा आती है, साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, साइन 2 थीटा की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होती है दैट इज इक्वल्स टू 1।
अनलेस एंड अनटिल उसमें कुछ आपने मल्टीप्लाई नहीं किया हो एज अ कोएफिशिएंट, देन साइन टू थीटा की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, हमें जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 1 है। बट यहाँ पे तो दे रखेगी साइन टू थीटा की वैल्यू या तो 3 या तो 3 से बड़ी होगी। ये तो जिंदगी में कभी पॉसिबल नहीं है, ये तो कभी भी जिंदगी में पॉसिबल ही नहीं है ना। तो साइन टू थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो नाइदर 1 and 2 आर करेक्ट, बोथ आर रॉन्ग। अब देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है m² sin थीटा माइनस 1 प्लस n² sin थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मेरे पास दे रखी है और क्वेश्चन में हमसे कुछ तो cos थीटा का जिक्र किया है और cot थीटा का जिक्र किया हुआ है। तो जैसे ही cot थीटा का जिक्र cot थीटा के बारे में बताया है, हमको समझ जाना चाहिए कि अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को cot थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं, cot थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, वेयर cot थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और cot थीटा कभी 0 होता भी नहीं है। नाउ एम cot थीटा को अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो m² बाहर रहेगा। cot थीटा जब sin थीटा से मल्टीप्लाई होता है, cot थीटा जब sin थीटा से मल्टीप्लाई होता है तो क्या छोड़ता है, cos थीटा छोड़ता है। माइनस में cot थीटा इंटू 1 इज cot थीटा प्लस n²। cot थीटा जब sin थीटा से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, अगेन cos थीटा होता है प्लस cot थीटा। ठीक है, अगर मैं cos थीटा को कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा m² प्लस n², और यदि मैं माइनस cot थीटा को कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा m² माइनस n²। तो ध्यान से देखो, एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से यदि आप देखो तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है क्या, m² प्लस n² cos थीटा, m² प्लस n² cos थीटा माइनस ऑफ m² माइनस n² इंटू cot थीटा माइनस ऑफ m² माइनस n² इंटू cot थीटा। जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। If sin alpha plus cos alpha is equal to root 2, then what is this expression equals to? ये कितना हो जाएगा, साइन a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हो जाएगा। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस की वैल्यू हो जाएगी 2, ये हो जाएगा 1। तो 2 साइन कॉस की वैल्यू हो जाएगी 1, साइन कॉस की वैल्यू हो जाएगी 1/2। कहने का मतलब है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, विच इज इक्वल्स टू दिस। अब हमको चाहिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कैसे निकालें, तो इसको फर्दर मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन प्लस कितना हो जाएगा ये 3, प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस, तो माइनस साइन कॉस, ऐसे भी तो लिख सकते हो। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना, साइन प्लस कॉस की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है। साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर करोगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। साइन माइनस कॉस कितना हो जाएगा, साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर हो जाएगा आपके पास साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर -4 साइन कॉस। तो साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर विच इज 2 -4 इंटू 1/2। तो 2 से 2 गया 0। तो जाहिर सी बात है अगर साइन माइनस कॉस ही 0 आ रहा है, यानी कि ये टर्म 0 आ रहा है, तो 0 इंटू समथिंग इज 0, तो पूरा का पूरा टर्म ही 0 बन जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज 1 प्लस कॉट अल्फा माइनस कोसेक अल्फा इंटू 1 प्लस टैन अल्फा इंटू सेक अल्फा। कुछ नहीं करना है, इसको करना है 1 प्लस कॉस अपॉन साइन माइनस 1 अपॉन साइन मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस साइन अपॉन कॉस प्लस 1 अपॉन कॉस। तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन प्लस कॉस माइनस 1 अपॉन साइन इंटू साइन प्लस कॉस प्लस 1 अपॉन कॉस, यानी कि साइन प्लस कॉस माइनस 1 साइन प्लस कॉस प्लस 1। तो कितना हो जाएगा, साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन साइन इंटू कॉस, हो जाएगा 1 माइनस 1, तो हो जाएगा 2 साइन कॉस अपॉन साइन कॉस से साइन कॉस कैंसिल। आंसर कितना आ जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर सी 2। टैन थीटा की वैल्यू ये दे रखी है, तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो अगर मैं थीटा यहाँ बनाऊँ तो ये बेसिकली साइन माइनस कॉस दे रखा है अपॉन साइन प्लस कॉस दे रखा है। तो ये कितना हो जाएगा, √2 कैसे हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा साइन 2 साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो 2 प्लस 2, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, अंडर रूट 2 माइनस
2 माइनस जीरो, तो अंडर रूट 2 आएगा। तो बेसिकली इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में 2। हमसे कह रहे हैं रूट 2 साइन थीटा, तो साइन थीटा यहाँ से आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर यानी कि साइन माइनस कॉस अपॉन हाइपोटेनस विच इज रूट 2। तो यहाँ से साइन माइनस कॉस की वैल्यू हो जाएगी रूट 2 साइन थीटा। हमसे क्वेश्चन में वही तो पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, रूट 2 साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, तो रूट 2 साइन थीटा की वैल्यू इज इक्वल्स टू साइन माइनस कॉस अल्फा, या साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा विच इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आते हैं, क्या बोल रहा है, साइन अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा प्लस 4 साइन अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा माइनस 4 बिकम्स जीरो। ये जीरो तभी होगा जब इनमें से कोई एक जीरो होगा, या फिर सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। तो इन सभी को जीरो होने के लिए साइन अल्फा की वैल्यू को प्लस माइनस 2 या फिर प्लस माइनस 4 होना पड़ेगा। बट द थिंग इज कि साइन अल्फा की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ -1 से 1 लाई करती है। तो साइन अल्फा के लिए 2 होना, -2 होना, 4 होना, -4 होना, जो कि इस बाउंड से ही बाहर है, इस बाउंड से ही बाहर है, बिकॉज साइन अल्फा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही लाई कर सकती है, ना कि उससे कम ना ही उससे ज़्यादा। लेकिन ये सारे के सारे बेसिकली बाउंड जो आ रहे हैं, ये तो इससे भी पीछे जा रहे हैं या तो इससे भी आगे जा रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि इनमें से कोई भी वैल्यू जो है इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। सो नो वैल्यू does this expression satisfy or become zero. Now what is the value of x where 0 is x and 30, satisfying this? So tan 3x can be written as 1 upon tan 6x, which can be written as cot 6x, which can further be written as tan 90 minus 6x. So if you equate this, you will get tan 3x is equals to tan 90 minus 6x. Equate these angles, so 3x की वैल्यू हो जाएगी 90 minus 6x, 9x की वैल्यू हो जाएगी 90, x की वैल्यू हो जाएगी 10 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करने की बजाय आप यहाँ पे वैल्यूज रख के सॉल्व करो, ताकि आपके लिए अच्छा होगा। ये दे रखा है यहाँ पे कि a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू बराबर नहीं है। ठीक है, बराबर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने a की वैल्यू को -1 ले लिया, b की वैल्यू को 0 ले लिया, c की वैल्यू को -1 ले लिया। हमारे पास ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये सब के सब पॉजिटिव नंबर्स हैं, कि नेगेटिव नंबर्स हैं, कि रियल नंबर्स हैं, कि कुछ भी है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो मैंने ये तीनों नंबर्स ले लिए जो कि सबसे सिंपल लगे मुझे। तो a माइनस बी यदि मैं निकालूंगा तो 1 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर है। b माइनस सी निकालूंगा तो 1 इंटू सी माइनस ए की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू सॉरी सी की वैल्यू हो जाएगी 1। हाँ, तो b माइनस सी कितना हो जाएगा, -1 इंटू 2, दैट इज इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/2। सिमिलरली इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, b माइनस सी, ये भी आपका 1 अपॉन सी माइनस ए, 2 इंटू ए माइनस बी -1, ये भी आपका -1/2 आ रहा है, प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, यानी कि 4 अपॉन -1 इंटू -1 यानी कि -4, सॉरी 4 प्लस 4 -3, ये हो जाएगा -1 प्लस 4 -3, 3 -3 विच इज 0। ऑप्शन नंबर ए, ओके। इस वाले सवाल को ध्यान से देखें तो इसको रफ में करते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास ये बोला हुआ था कि given that 100 into 99 into 98 and so on till 3 into 2 into 1 अपॉन 100 की पावर n इज एन इंटीजर, ये एक इंटीजर है, ये एक हमारा इंटीजर है। व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस इज ट्रू। ओके, सो ऊपर जो चीज़ लिखी है वो 100 फैक्टोरियल लिखी है अपॉन 100 की पावर n। हमको पता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 25 इंटू 4 की पावर n, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 2n इंटू 5 की पावर 2n। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। अब एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर p इन n फैक्टोरियल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, GIF ऑफ n डिवाइड बाई p की पावर 1 प्लस GIF ऑफ n डिवाइड बाई p की पावर 2 प्लस GIF ऑफ n डिवाइड बाई p की पावर 3 एंड सो ऑन टिल दिस GIF यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बिकम्स 0। ये होता है इसका उस पर्टिकुलर n फैक्टोरियल के एक्सपेंशन में 2 की पावर में कितने नंबर आ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे निकालूं एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 2 की पावर 1 प्लस GIF ऑफ 100 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 प्लस GIF ऑफ 100 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 एंड सो ऑन, ऐसे करते करते जाएगा। अगर आप देखो इसको तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा आपका 12, फिर आगे जाएगा 6 आएगा, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2, फिर आएगा 1 और लास्ट में आपका 0 आ जाएगा। इसको ऐड करोगे तो आएगा 12, 24, 49, 49 प्लस 50, सॉरी 3 प्लस 3 6 प्लस 12 24,
सॉरी ये 2 नहीं आएगा, 1 आएगा। ये कहाँ तक जाएगा, 100/2 तक, क्योंकि जब आगे जाओगे वैसे ही जैसे 100/2 करोगे तो उसका GIF 0 आ जाएगा। इसको ऐड करोगे तो आएगा 10, 22, 47 + 50, 97। ठीक है, ये आ रहा है 97। कहने का मतलब ये है कि जो मैक्सिमम 100 फैक्टोरियल में मैक्सिमम जो 2 की पावर हो सकती है दैट इज़ 97। कहने का मतलब है कि ये जो 2 है इसको आप 97 या उससे कम रखो। दूसरा 5 में कर लेते हैं, 5 भी एक प्राइम नंबर है, तो कितना हो जाएगा 100/5 GIF प्लस GIF ऑफ 100/5 है ना, प्लस 100/GIF ऑफ 5 ठीक है, ये होगा। अच्छा, अब इसका वैल्यू तो आपके पास 20 आ जाएगा प्लस में, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4, और इसका वैल्यू आपका कितना 0, तो ये आएगा 24। यानी कि मैक्सिमम 100 फैक्टोरियल में जो 5 की पावर हो सकती है वो मैक्सिमम 24 तक जा सकती है। यानी कि ये वाली जो वैल्यू है वो 2 की पावर n कहाँ तक जाएगी, 24 या उससे कम तक जाएगी। यहाँ से n की वैल्यू 12 से कम आ रही है, और यहाँ से अगर आप देखोगे n की वैल्यू कहाँ से कितने कम आ रही है, 48.5 आई गेस, 2 4 8 117 12, तो n की वैल्यू इससे कम है और n की वैल्यू इससे कम है, तो n की वैल्यू बेसिकली 12 या उससे कम होनी चाहिए ताकि दोनों सेटिस्फाई कर सकें, राइट, कॉमन। सो n की वैल्यू 12 या उससे कम होनी चाहिए, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे 12 तो आ ही नहीं रहा है, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा। अब मैन स्टार्टिंग फ्रॉम अ प्लेस P, अगर मैं इसको बोलता हूँ प्लेस P, वेंट x मीटर्स ईच ईस्ट, x मीटर गया ईस्ट, ठीक है, यहाँ तक गया। बिफोर टर्निंग साउथ ही वेंट 40 मीटर स्ट्रेट, 40 मीटर गया साउथ। बिफोर टर्निंग टू वेस्ट ही वेंट 60 मीटर टू रीच अ प्लेस Q, यहाँ पे गया 60 मीटर। फ्रॉम Q ही वेंट 200 मीटर नॉर्थ। अगर ये 40 है तो ये 160 हो जाएगा, ताकि ये तभी 40 तभी 200 जाएगा, ये हो जाएगा R। PR की वैल्यू हमको दे रखी है 200, हमको निकालना है x क्या है पूरा, इसकी लेंथ, तो यहाँ पे तो 60 दे रखी है। सपोज मैंने इसको बोला y, तो y कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में 200 का स्क्वायर माइनस 160 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 400 माइनस 256 00 4 1, तो कितना हो जाएगा 120। इसकी वैल्यू y की वैल्यू कितनी आएगी 120, लेकिन हमसे पूछा है x की वैल्यू, और x क्या था, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, तो 120 तो सिर्फ y की वैल्यू हो गई, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 भी तो है यहाँ पे, यहाँ इसके हिसाब से, तो 120 + 60 कितना हो जाएगा 180। अगर आप ध्यान से इसको देखो, इस वाले क्वेश्चन को हमसे पूछ रहे हैं हाउ मेनी वैल्यूज कैन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है। आपको एक फॉर्मूला पता है, x + y + z का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x² + y² + z² + 2 टाइम्स xy + yz + zx, ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं इसको बोलता हूँ सम का स्क्वायर, तो सम का स्क्वायर इज दिस, x² + y² + z² की वैल्यू 3 दे रखी है प्लस 2 टाइम्स। अब हमको ये इसका वैल्यू पूछा है, तो इसको मैं बोलता हूँ प्रोडक्ट दिस p, यानी कि प्लस 2 टाइम्स p की वैल्यू हमको निकालनी है कि कितनी तरह की वैल्यूज हो सकती है p में, तो s² - 3/2 ये। अभी सब कुछ s पे डिपेंड करेगा। s क्या है मेरे पास, x + y + z, और इसकी एक्सप्रेशन को देख के लग रहा है कि यहाँ पे x², y² और z² तीनों के तीनों 1 है, तो सम की कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज हो सकती हैं ये भी तो देखते हैं। x की वैल्यू ±1 हो सकती है, y की वैल्यू ±1 हो सकती है, z की वैल्यू +1 हो सकती है। तो मेरे पास टोटल ऐसे 4 केसेस बनेंगे, कहाँ पे, जब सभी के सभी 1 हो जाए, या तो जब सभी के सभी -1 हो जाए, तो या तो इनमें से कोई एक 1 हो जाए बाकी के 2 -1 हो जाए, या तो इनमें से कोई एक -1 हो जाए बाकी के 2 1 हो जाए। तो टोटल मेरे पास ऐसे 4 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, ठीक है। बट द थिंग इज कि अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो मेरे पास 3 आएगा, ठीक है, इसको मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास -3 आएगा, इसको मैं ऐड करूंगा तो -1 आएगा, और इसको मैं ऐड करूंगा इस वाले को तो 1 आएगा। ये -3 इसका आ रहा है ना। 4 केसेस बन रहे हैं, कौन कौन से, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, 1, -1, -1, 1, इसको जब ऐड करोगे तो 3 आएगा, इसको जब ऐड करोगे तो -3 आएगा, इसको जब ऐड करोगे तो -1 आएगा, इसको जब ऐड करोगे तो 1 आएगा। और जब आप इसका स्क्वायर लोगे, चूंकि सम का स्क्वायर है, मैंने इसका सम ही किया है, तो जब सम का स्क्वायर लोगे तो ये तो 9 आ जाएगा, ये भी 9 आ जाएगा, और ये भी 1 आ जाएगा, और ये भी 1 आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं 2 डिस्टिंक्ट हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं, 9 और 1, जो कि s² की वैल्यू को बता रही हैं। तो जब 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ s² हैं तो 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ p भी हैं, तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा 2, राइट।
इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए, दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 10 दे रखी है, तो यहाँ पे रख दो, तो 10 इंटू हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 18, तो 100 माइनस 54 कितना हो जाएगा 46, एंड दिस 46 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज बेसिकली 460, ओके 460 विच इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल है। हमारे पास जो अंदर ये टर्म लिखा हुआ है, इसको मैं बोल सकता हूँ क्या, इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ 17 माइनस 4 इंटू √3 इंटू √5, और इसको मैं फर्दर तोड़ सकता हूँ 17 माइनस 2 इंटू 2√3 इंटू √5। अब 17 को मैं लिख सकता हूँ 2√3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2√3 इंटू √5, ऐसे लिखा जा सकता है। जिस कहने का मतलब है कि दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a इंटू बी, सो दैट इज इक्वल्स टू a माइनस b का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 2√3 माइनस 5 का स्क्वायर, और जब मैं इसका अंडर रूट लूँगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी कौन सी 2√3 माइनस 5 प्लस, अगर आप ध्यान से इसको देखो तो 8 माइनस 2√15 को मैं लिख सकता हूँ 8 माइनस 2 इंटू √3 इंटू √5, तो इसको मैं लिख सकता हूँ √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू √5, कितना हो जाएगा √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब जब मैं इसका अंडर रूट लूँगा तो रूट जाएगा √5 माइनस √3, तो हो जाएगा प्लस √5, यहाँ पे कितना हो जाएगा √5 होगा ना, हाँ, तो ये तो हो जाएगा प्लस में आ जाएगा √5 माइनस √3, तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 2√3 माइनस √5 प्लस √5 माइनस √3 कितना हो जाएगा ये √3, है ना, विच इज ऑप्शन नंबर ए। नो, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सम, इसका सम पूछा है, तो ये वैल्यू कहाँ जाके रुकेगी, आप देख सकते हो ये -3 -3 -3 -3, तो 3 यहाँ पे आएगा, लास्ट वाला टर्म 3 आएगा। हालांकि और भी टर्म्स आ सकते हैं जैसे 0 -3 एंड सो ऑन, बट द थिंग इज कि हमारे पास ऑप्शन में पॉजिटिव क्वांटिटी रखी है, जाहिर सी बात है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सम तो इतना ही आएगा, जहाँ तक 3 तक जाएगा, ये नेगेटिव क्वांटिटीज तो ले नहीं सकते। तो थर्ड ये कौन सा टर्म आएगा, अगर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो ये वाला टर्म कौन सा आएगा 12th टर्म आएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है AP का, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n की वैल्यू कितनी है 12, तो 12/2, a कितना है 36 और 3, और यहाँ पे 3 है लास्ट टर्म, तो कितना आ जाएगा 39 इंटू 12/2 विच इज 6 4 5 234 विच इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नाउ देयर आर टू नेचुरल नंबर्स m and n वेयर m इज डिवाइडेड बाई 12, where m is divided by 12 it leaves a remainder 4, when n is divided by 12 it leaves a remainder 6। तो अब एक काम करते हैं, ऐसा नंबर लेते हैं, सपोज मैंने लिया 12 इंटू 224, सपोज मैंने m को लिया 40, तो जब मैं 40 को 12 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 4, 40 मॉड 12 की वैल्यू हो जाएगी 4, n की वैल्यू क्या है डिवाइड बाई 12, n की वैल्यू को यदि मैं 30 लूँ और 30 मॉड 12 करूँ तो 6 आ जाएगा, जो कि हमको दे भी रखा है। ठीक है, तो m प्लस n कितना है, m की वैल्यू को मैंने लिया 40, n की वैल्यू को मैंने लिया 30, तो m प्लस n कितना हो जाएगा 70। अब 70 मॉड्यूलो 12 करोगे तो आंसर कितना आएगा 12 5 60, तो ये भी 10 रिमाइंडर छोड़ रहा है, और m माइनस n करोगे तो 40 में 30 10, और 10 को जब 12 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली 10 ही रिमाइंडर छोड़ेगा, तो जाहिर सी बात है ये भी 10 रिमाइंडर दे रहा है, ये भी 10 रिमाइंडर दे रहा है, तो यहाँ पे बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए ध्यान से, हाँ, x प्लस वाई इज टू वाई प्लस जेड इज टू जेड प्लस एक्स, ये दे रखा है, सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस वाई की वैल्यू 3k है, y प्लस जेड की वैल्यू 5k है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो z माइनस एक्स की वैल्यू 2k आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे मेरे को z प्लस एक्स की वैल्यू भी दे रखी है क्या 6k, दोनों को ऐड करोगे तो 2z की वैल्यू 8k आएगी, z की वैल्यू 4k आ जाएगी, z की वैल्यू 4k आते ही x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2k, x की वैल्यू 2k है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी k। ठीक है,
हमसे पूछा है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 14, यानी कि इन सब का ऐड करोगे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 14 दे रखी है, यानी कि 2k प्लस k प्लस 4k, इसकी वैल्यू 14 है, 7k की वैल्यू 14 है तो k की वैल्यू 2 है, k की वैल्यू 2 है तो z की वैल्यू 8 हो जाएगी, y की वैल्यू 2 हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 4। यहाँ पे रखो सबको, कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर विच इज 16 प्लस 4 प्लस 64 दैट इज इक्वल्स टू 68 प्लस 16 दैट इज इक्वल्स टू 84। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी विच इज 84। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर है, लेट अस सपोज दो नंबर्स आर ए एंड बी, टू देयर डिफरेंस, तो उनका सम और उनके डिफरेंस का रेशियो 5/1 दे रखा है, तो a प्लस बी की वैल्यू 5 है माइनस 5b है, सो 4a इज इक्वल टू 6b। ठीक है, 4a इज इक्वल टू 6b, तो a अपॉन b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/4 दैट इज 3/2। हमसे कह रहा है कि रेशियो ऑफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसकी वैल्यू रेशियो ऑफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स टू द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स। अगर मैं यहाँ से b स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो बचेगा a बाई बी का होल स्क्वायर प्लस 1, अब और नीचे में क्या बचेगा a बाई बी का होल स्क्वायर माइनस 1, a बाई बी की वैल्यू 3/2 है, यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो आएगा 9/4 प्लस 1 अपॉन 9/4 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 13/4 अपॉन 5/4, 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा 13/5 या 13:5 विच इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, traveling at 3/5 of his usual speed, let us suppose the usual speed is x, a man is late by 20 minutes. Okay, that means if he is traveling the distance d with the speed of 3u/5, then he is basically 20 minutes late. That means if he used to travel the same distance d with his usual speed u, then he would have covered the time less than, or basically this time when his speed was slow, then he is basically लेट बाई 20 मिनट्स, तो 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 5d/3u इज इक्वल्स टू d/u प्लस 20, सो 20 इज इक्वल्स टू d/u, 5/3 माइनस 1 इज 2/3, सो 2 से 10, सो d/u की वैल्यू आ जाएगी 30। अब d/u कितना डिस्टेंस अपॉन स्पीड इस टाइम, तो टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 which is option number B। ठीक है, what is the remainder when 2 to the power p minus 1 is divided by p where p is greater than 5, for any p greater than 5 which is a prime number, suppose p की वैल्यू 7 है, 7 है तो यहाँ पे रखो, तो 2 की पावर 7 माइनस 1 यानी कि 127, 127 को जब मैं p से डिवाइड करूंगा यानी कि 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 7 1 7 57 7 56, तो 18 यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 18 × 7 + 1, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है ऑप्शन नंबर ए विच इज़ 1। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आता है, what is the number of factors of this particular expression? So the number of factors include 24 cube minus 16 cube plus 8 cube. 24 cube can be written as 16 plus 8 ka whole cube minus 16 cube plus 8 cube. This is 16 cube plus 8 cube plus 2 into 8 into 16 upon 8 into 8 plus 16 which is 24. Minus में 16 cube minus में 8 cube, तो 16 cube 8 cube 16 cube 8 cube cancel out. Now this is left with, we are left with, this is 3, so 3 की power 1 into 8, 8 is 2 cube, this is also 2 cube, this is 2, 2 की power 7 into 4, this is 2 की power 11, तो हमारे पास फाइनली जो ब्रेक डाउन हो गया है वो that is 2 की power 11 into 3 की power 1, sorry 2 की power 10, that is this is 2 की power 4, 2 की power 3, 2 की power 3, सॉरी ये 3 होगा ना, हाँ ये 3 होगा, तो 3 होगा तो 3 की एक बार बढ़ गई और 2 की एक बार कम हो गई, तो ये होगा हमारा फाइनली जो ब्रेकडाउन आया वो 2 की पावर 10 into 3 स्क्वायर आया। सो अगर मैं इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालूं तो क्या होता है, जो 2 की पावर में 10 डीएल है उसका 11, उसका एक ज़्यादा होता है, और जो 3 की पावर 2 में विच इज़ 2, 3 की पावर में क्या है 2, उसका एक ज़्यादा होता है, तो इन दोनों को एक ज़्यादा से ऐड करके मल्टीप्लाई मार देते हैं विच इज़ 33, ऑप्शन नंबर ए। What is the least number of complete years in which a sum of money put out at 20% compound interest compounded annually will be more than doubled? यानी कि अमाउंट जो है वो ग्रेटर देन 2p होना चाहिए। अमाउंट की वैल्यू क्या है p 1 + r/100 की पावर n इज ग्रेटर देन 2p, p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6/5 की पावर n इज ग्रेटर देन 2, ये होगा। अब अगर मैं n की वैल्यू को 2 रखूंगा तो 36/25 आएगा विच इज़ 1 point something something विच इज़ नॉट ग्रेटर देन 2, इट इज़ लेस देन 2।
अगर 3 रखूंगा तो 216/125 आएगा, विच इज़ अगेन 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, दैट इज़ लेस देन 2। अगर मैं 4 रखता हूँ तो कितना आ जाएगा, 5 की पावर 4 625 वजह 6 की पावर 4 कितना होता है 6 3 9 1 2 9 6। अच्छा अगर आप ध्यान से देखो तो 620 ये वाला जो टर्म है वो 2 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ आएगा, एंड दिस 2 पॉइंट समथिंग समथिंग इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। जब मैंने n को 4 रखा तब जाके इस वाली कंडीशन को उसने सेटिस्फाई किया जो कि ग्रेटर देन 2 सेटिस्फाई करना चाहिए था। सो आवर आंसर इज n इज इक्वल्स टू 4। द थिंग इज नाउ अ ट्रेन ऑफ सर्टेन लेंथ टेक्स टाइम t टू पास कंप्लीटली थ्रू अ स्टेशन ऑफ लेंथ x। तो टाइम t उसको लगा, लेंथ की ट्रेन की लेंथ l है और स्टेशन की लेंथ x है, तो l प्लस x हो जाएगा, है ना, l प्लस x अपॉन में स्पीड u है और टेक्स 2t टाइम, 2t कितना हो जाएगा कंप्लीटली थ्रू अदर स्टेशन ऑफ लेंथ y विद द सेम स्पीड। लेंथ y है तो l प्लस वाई अपॉन यू हो जाएगा। अब जब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो आएगा 1/2 इज इक्वल्स टू l प्लस एक्स अपॉन l प्लस वाई, यही आ जाएगा। सो l प्लस वाई इज इक्वल्स टू l प्लस 2x, है ना, सॉरी हाँ 1/2 इज इक्वल्स टू l प्लस एक्स अपॉन l प्लस वाई, तो l प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2l प्लस 2x। सो l की वैल्यू कितनी आ रही है y माइनस 2x, है ना, और u की वैल्यू कितनी आ रही है l प्लस एक्स अपॉन टी। सो u की वैल्यू आ जाएगी y माइनस 2x प्लस एक्स इज वाई माइनस एक्स अपॉन टी। u की वैल्यू आ गई, l की वैल्यू आ गई, बस और कुछ नहीं चाहिए हमको बस सब्स्टिट्यूशन चाहिए। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू पास कंप्लीटली थ्रू अ स्टेशन ऑफ लेंथ x प्लस वाई। सो टाइम टेकन सपोज t1, तो x प्लस वाई प्लस l अपॉन में u, तो x प्लस वाई माइनस 2x अपॉन u क्या है y इंटू टी अपॉन में y माइनस एक्स। सो दैट इज 2y t माइनस एक्स टी अपॉन में y माइनस एक्स विच इज़ ऑप्शन नंबर डी। तो इसी के साथ हम यहाँ पे 2025 CDS एलिमेंट्री मैथमेटिक्स फर्स्ट पेपर को फर्स्ट पार्ट को ख़त्म करते हैं, विच इंक्लूड्स टॉप फर्स्ट 50 क्वेश्चंस। एंड आपने देखा ज़्यादा कुछ कठिन तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़े थोड़े इसमें से एनालिटिकल सवाल थे। हमने क्या क्या कवर किया, हमने कवर किया ट्रिग्नोमेट्री, हमने कवर किया रिमाइंडर थ्योरम, हमने कवर किया कुछ क्वेश्चन आपके एलजेब्रा से भी आए थे, एलजेब्रिक मैनिपुलेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, और आपके मतलब मोस्टली सवाल तो ट्रिग्नोमेट्री से ही थे, और ज्योमेट्री से भी कुछ सवाल आए थे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वाला था, और भी बहुत सारे सवाल है। तो इन सवालों की रेगुलर प्रैक्टिस एक चीज़ डिमांड करती है, कंसिस्टेंसी, उसको आप करेंगे तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और हमने 11 साल के पेपर कर ही लिए हैं, 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और बहुत अच्छे से डिटेल्ड सॉल्यूशन है हर एक चीज़ का। आप उस चीज़ को देखिए जहाँ पे भी नहीं समझ में आ रहा हो, एंड यू कैन फ्रीली आस्क योर डाउट्स। ओके, थैंक यू।